Welcome, dear learners. As you are aware that our university, Indira Gandhi National Open University, is running a very wonderful program. It is known as Certificate in Consumer Protection. This wonderful program is being offered by our School of Law, and this program has a very unique feature that in this program our learners get an opportunity to do a project work. Also project report, they have to prepare their project report, and for that they have to do a very small research work which we call as project report. So today we are going to discuss with you about this wonderful program of ours, and today to deliberate on this issue we have with us Professor Dr. Gurmeet Kaur ma'am. She is Director School of Law, and today we will be getting her guidance in how to do this project work. Before that, I would also like to share some very brief basic points about our this program, Certificate in Consumer Protection, with the help of PowerPoint slides. I hope it is visible. Ma'am, are the slides visible? Yes, visible. Yes. Yeah. Thank you, ma'am. Dear learners, as you are already aware of, the complete name of our this program is Certificate in Consumer Protection, and this program code is a CCP, and it has a course code CPIP 104. It is project work in the consumer protection. From the prospectus, you must have already gone through these basic details. It is a 16 credit program on consumer protection, and any 10 plus 2 pass candidate can get enrolled in this wonderful program of our university. This program aims at creating an overall awareness and training on consumer affairs with special emphasis on the consumer protection. Dear learners, as you all know that our government of India, it also emphasizes on the rights of the consumers. As a consumer, you have certain rights, and it is the responsibility of each one of us that these rights must be protected properly. So after completing this program, the learners may become consumer activists. They can work in industries, NGOs, and government departments on consumer affairs. They can file and plead their own cases in consumer redressal forums created under the Consumer Protection Act 1986. As I just told you, any 10 plus 2 pass candidate can get enrolled in our this program, and the medium of instruction is English as well as Hindi, and it has 4 particular courses. 3 are theory courses, and fourth one is project work in consumer protection. Total credits of this program are 16 credits, and program coordinator is Dr. Gurmeet Kaur, as I just told you. Today, she is very kind enough to spare some of her valuable time for us and our students. Dear learners, we will focus today on the project work, and its course code is CPIP 104, and the course it has this course, particularly this particular project course, it has 4 credits, and it is a skill oriented course. The course objectives are to understand how to carry out a project work, how you are going to prepare and write a project proposal. We will focus on the project proposal first, then the stages involved in the preparation of your project work. Then you will learn the manner and method of data collection, and lastly you will be coming to know how to prepare your final project report. So this way we are going to conduct this today's session with the help of Madam Gurmeet Kaur. Ma'am, once again I welcome you, and I thank you personally. I thank you because I know that in your capacity of Director School of Law also you are very busy, and today our learners will be getting benefited by your very rich experience. Thank you. Thank you, Ashok ji. I think it's a very welcome step on the part of RC to organize such a sessions, because it will help the learners to understand the actually issues. There are various issues which the students face, and they don't know how to write the project or how to write the synopsis and what procedure has to be followed. So I think this session would help all those students who have enrolled in the program.
So I think you have already given the overview of the program. So I won't take much time on that. But as you have already said, the program basically enhances the knowledge about the consumer affairs, rights, responsibilities, what are the remedies, what is the law which is applicable in India. And basically, its objectives basically includes the developing skilled professionals. Yes, madam. And for maybe they can work in a non-governmental organizations or a governmental departments. And main is how we can promote the consumer rights. The consumer should know, especially in the era of digital world, when now the consumer is going online purchase, doing online purchasing. So what are the rights of the e-consumer? That is also very important. What are the, what are the, there are many privacy issues also which were involved when the data is shared. So how the consumer can be protected in that. So with this aim, we started this program. We revised the program to introduce all those things also. But basically, the objective of this project work is to, because we want the student to conduct some research so that, or analyze some topic that a person can choose, a student can choose within the consumer protection, and how it will allow them to, have a practical experience, or it will deepen their understanding, allowing them to gain, many insights. And it will also help the individual to question, they can question, they can evaluate, and then they can make an informed decision as a consumer. So how to make a, when they are buying, or what is the consumer behavior patterns when they are buying things over online or through offline mode, and what are the remedies and what are the protections which is provided in the law. That is very important. So project work basically aims to, it gives the student, practical application, because they have to apply the theoretical knowledge which they have gained, what are the consumer protection issues are there. Then it will also focuses on skill development, because the student can develop valuable skills like, research, critical thinking, problem solving, and time management. Then also it focuses on career advancement somewhere. It will help the students to, when if they want to work in some governmental organizations or a non-governmental organizations. So they can also play a very important role as a consumer activist, we can say, or they can research in various organizations which carry forward the various types of research relating to a consumer. Then it also leads to somewhere the intellectual growth of a learner, because it basically serves as a platform for the student to contribute new insights into the perspective, new perspectives into the field of consumer protection. Because you can also, as a researcher, come out with certain new analysis, come out with some new study research. When we say, because when we say you are doing a research project, so what we aim is, we say it is a intensive study a student has to do on a topic, a systematic study, a focused endeavor, we can say, where the student has to answer a specific set of research questions which that person may frame, or it has to solve some research problem, or we can say an investigation to discover new facts or information. Or it's not only always we say ki you have, when you are doing research, that means you have to come out with only the new facts. No, even you can interpret the existing ones which can contribute to the fundamental basic knowledge. So research is not only doing the discovering new facts, but also interpretation of the existing ones. So that was the basically how we go for the research project, or we say the research project is an, how it is a systematic and a focused study. So then is, the main question which comes, I think, that's the main for the students. अब हमेशा वो ये रहते हैं, आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश इन बिटवीन। यस मैडम, श्योर मैम। तो ये लगे कि मैम इंग्लिश में ही बोल रही हैं। यस मैम। कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि रिसर्च हम करते हैं, स्टूडेंट रिसर्च करता है, तो उसका मेन इंटेंशन होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं कुछ पढ़ाई करूं जिससे मेरी नॉलेज बढ़े और मैं कुछ अच्छा लेके आऊं, जो समाज के लिए मैं ये भी बता सकूं कि फ्यूचर इसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, या मैं एग्जिस्टिंग चीजों को एनालाइज करूं कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो मेन क्वेश्चन जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट चूज करता है तो हमेशा उसको एक सबसे पहला यही क्वेश्चन प्रॉब्लम में लगता है कि मैं पढ़ूं क्या, टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हमें भी कॉन्टैक्ट करता है तो मैडम क्या टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए। तो वैसे तो हमारे प्रोग्राम, हाँ जी, वैसे हमारी प्रोग्राम गाइड में भी दिया हुआ है जो प्रोजेक्ट वर्क की है, उसमें भी हमने थोड़े से इंस्टेंसेस एग्जांपल्स दिए हुए हैं अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको। बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि आप कोई भी स्टडी चूज कर सकते हैं, चाहे वो आप समझे कि आपको अवेयरनेस लेवल देखना है कंज्यूमर का। सो यू कैन स्टडी कंज्यूमर अवेयरनेस लेवल्स
and effectiveness of campaign to educate consumers about their rights, especially in the digital area. आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि सब जगह है कंज्यूमर, तो ऑल आप दूध परचेज कर रहे हैं आप कंज्यूमर हैं, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं आप कंज्यूमर हैं, तो डे टू डे कंज्यूमर तो हम किसी न किसी फॉर्म में हैं. यस मैम. हाँ, तो कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, आप अवेयरनेस की, कंज्यूमर को कितनी अवेयरनेस है लॉ की, अपने राइट्स की, आप ये भी एक स्टडी कर सकते हैं. या क्या जो कंपेयरिंग्स होती हैं, आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स इतनी आती हैं कि हम लोग देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम सोचते हैं अब ये खरीद लें, बिकॉज इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट, ऑन द पीपल एक्चुअली. तो हर किसी का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर अगर पैटर्न देखे तो एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. तो हम उसका भी रूल को डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट है कंज्यूमर पर, और क्या लॉज में और क्या अच्छा होना चाहिए या क्या एडिशन होना चाहिए कि इनको प्रॉपरली उसका क्या इम्पैक्ट है बेसिकली लेजिस्लेशंस का. या फिर हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियरल साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी. We can study from behavioral science aspect to understand how consumer make decisions, and we can also identify then vulnerabilities, क्या problems उसको आ रही हैं, which can be exploited by business. तो unfair trade practices हैं या यस मैम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार बिल नहीं मिलता है. तो अभी नया एक्ट आप देखेंगे तो उसमें आया कि बिल अगर आपको कोई रिसीट मना करता है, इट कम्स अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. यस मैम. तो आप देना जरूरी है, लेकिन अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत जगह ऑनलाइन में आता है, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप जाके खरीदते हैं वर्चुअल रियल स्पेस में कई बार तो नहीं लेते भी नहीं, खुद भी नहीं लेते हैं. यस मैम. लेकिन जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं बाय मे बी बाय एडवर्टाइजमेंट और भी चीजें जो इम्पैक्ट करती हैं, या क्या वल्नरेबिलिटी है जो बिजनेसेस एक्सप्लॉइट करते हैं, उस पर भी एक स्टडी कर सकते हैं. मैडम यू आर वेरी राइट. मैडम यू आर वेरी राइट. ज्यादातर कंज्यूमर्स को अपने इस अधिकार का पता नहीं होता है दैट दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉपर बिल. और मैम बिल हम सब लोगों के लिए लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इन केस फ्यूचर में प्रोडक्ट में अगर कोई कमी निकल आए तो हम उस मैटर को टेकअप प्रॉपर फॉर्म पे तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर पक्का बिल होगा. बिल्कुल. अगर बिल ही हम नहीं ले रहे हैं, या कंपनी या एजेंसी वाला या जिन्होंने भी शोरूम जहां से भी हमने कोई भी चीज खरीदी है, अगर उन्होंने बिल नहीं दिया, उन्होंने अपने लेवल पर चालाकी की, लेकिन फिर भी एज ए कंज्यूमर हम लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए और अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर बिल जरूर लें, ताकि फ्यूचर में किसी भी समय पर जरूरत पड़ने पर हम उस बिल को प्रॉपर फॉर्म पे प्रोड्यूस कर सकें, और अपना अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकला आया है उसका या तो रिपेयरमेंट हमें करवाना है विद इन वारंटी, या फिर उसका रिप्लेसमेंट की अगर कोई नौबत आ गई है तो वो चीजें केवल तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हमारे पास प्रॉपर बिल होगा. तो आपने मैडम बिल्कुल सही इस बारे में हमें ये भी एक टॉपिक हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस पर रिसर्च करें. और ये आप अपने एरिया में भी एक सिंपल एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जिसे कहते हैं कि आप खाली अगर दिल्ली में रहते हो तो आपने दिल्ली के खाली उसको अपना टेरिटरी बना के वहीं पर स्टडी की, चाहे वो आप प्राइमरी, अभी थोड़ा हम बात करेंगे आगे रिसर्च कैसे हम कर सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप मतलब अपने एरिया में जहां आप रहते हैं उस एरिया में भी कर सकते हैं, और थ्रू आउट इंडिया में अगर आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे हम इम्पैक्ट हम कर सकते हैं, टॉपिक हम चूज कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस. कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है जो नया एक्ट आया है, या बिजनेसेस पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. फिर हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन एग्जामिन द रोल ऑफ बिजनेस इन प्रमोटिंग गुड प्रैक्टिसेस, प्रोवाइडिंग क्लियर इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर वेलबींग. तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकता है, वी कैन आल्सो स्टडी दैट एस्पेक्ट आल्सो. देन इज sometimes we can also do research on effectiveness, disposal, affordability of consumer dispute resolution. क्योंकि जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, जैसे अभी आप बात किया बिल वाला भी हमने बात किया कि अगर हमें कोई कंप्लेन करनी है या कंज्यूमर फोरम में जाना है कंप्लेन को लेके, तो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म हमारा है वो कितना इफेक्टिव है, क्या वो उतना स्पीडली है जितना हम बोलते हैं, या उतना अफोर्डेबल है कि हम कहते हैं कि कोई फीस नहीं लगेगी, कितना अफोर्डेबल है. तो ये स्टडी भी आप कर सकते हैं. तो एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट, आपके पास स्टेट फॉरम्स हैं, तो आप किसी भी एक जगह को चूज करके आप उसका रिसर्च आप कर सकते हैं, वो प्राइमरी रिसर्च हो जाएगी आपकी. तो और आप डॉक्टरिनल भी कर सकते हैं. फिर है रिसर्च आप कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हमारा नए एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्होंने डाला जो रेगुलेट करती है सारे को. तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, क्योंकि उसके पास कई पावर्स हैं, तो क्या वो अपना पावर्स का कितना यूटिलाइजेशन कर पा रही है विद द हेल्प ऑफ केस लॉज एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मटेरियल्स. तो आप उसकी इफेक्टिवनेस पे भी आप
एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, या फिर आप यू कैन आल्सो वर्क ऑन द मेजर्स, व्हाट आर द मेजर्स व्हिच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट in regulating advertisements, or how you have to ensure transparency in advertisements. So that could also be one of your research topic जो आपका चूज आप करना चाहें, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट हो. फिर इसके अलावा हम इफेक्टिवनेस देख सकते हैं ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क. लीगल फ्रेमवर्क जो है वो कितना एम्पावर कर रहा है कंज्यूमर्स को, क्या वो उनको स्ट्रेंथन कर रहा है कंज्यूमर राइट्स को इंडिया में. जो हम कहते हैं कि देयर आर 6 राइट्स और 8 राइट्स व्हिच इज गिवन टू द कंज्यूमर, वेदर दिस न्यू एक्ट is effective in that. We can do that study also from the legal perspective if we are doing. Then we can also explore the challenges which is posed by the rise of e-commerce and the existing acts and regulation. अब हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या ई-कॉमर्स को डिफाइन किया गया, बताया गया कि ये चीजें आ सकती हैं. तो इसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, और क्या खाली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही एप्लीकेबल होगा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को, या और भी लॉज हैं. तो दैट कैन आल्सो बी एनालाइज्ड. फिर वी कैन आल्सो एनालाइज रोल ऑफ जुडिशरी. हम जुडिशरी को नहीं भूल सकते. हम जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन एक्सपैंडिंग द ऑरिजिन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो इस तरह से कई चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जो है मुझे लगता है एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक की जब हम बात करते हैं. तो यस मैडम, मैडम यू हैव शेयर्ड वेरी ग्रेट इनसाइट्स. क्योंकि जैसे जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ में एक बार मैं करूं, अभी तक मैडम आपने 3 मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज को आपने मैडम कवर किया है. सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की पर्पस ही क्या है, इस सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में प्रोजेक्ट क्यों रखा गया. मैडम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को इलेबोरेट किया कि प्रोजेक्ट हमारे लिए करना बहुत जरूरी है. और दूसरा मैडम साथ के साथ आपने हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताया व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द रिसर्च प्रोजेक्ट. और उसके बाद मैडम आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर इंसाइट्स हमारे लर्नर्स को दी हैं ऑन व्हाट पर्टिकुलर टॉपिक्स they can do their project work, what small studies can be done in this area. आपने बहुत अच्छे तरीके से मैडम कवर किया है. थैंक्स ए लॉट. मैम हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी क्यूरियोसिटी रहती है, हाउ आर दे गोइंग टू राइट देयर रिसर्च साइनॉप्सिस. प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल होगा, जो साइनॉप्सिस होगा, वो उसको किस तरीके से बनाएं. तो थोड़ा सा मैडम इस बारे में भी गाइड करिए कि उनको रिसर्च साइनॉप्सिस कैसे बनाना है, उसको कहाँ पर किस तरीके से जमा करवाना है, और क्या उनको उसके बाद उसके साइनॉप्सिस पर उनको अप्रूवल कन्वे की जाएगी, और उसके बाद फिर वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम करना कब शुरू करेंगे. तो मैडम थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को दे नीड योर गाइडेंस ऑन साइनॉप्सिस पार्ट आल्सो. नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक जी, मुझे लगता है, क्योंकि रिसर्च सिनॉप्सिस बना लिया आपने तो आपका प्रोजेक्ट का काफी काम हो जाता है. हम कहते हैं बिकॉज हम कहते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है. जब आपने रिसर्च सिनॉप्सिस बना लिया तो आपको पता लग जाता है कि आपको प्रोजेक्ट में लिखना क्या है. तो सबसे पहले तो हमारा वही क्वेश्चन आ जाता है कि आपका टॉपिक क्या होगा, आपका टाइटल क्या होगा. तो स्टूडेंट जिस फील्ड में काम करना चाहता है उसको चूज करना है उसको. लेकिन टाइटल जो हम जब भी रखते हैं तो एक बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि ब्रीफ हम लें, बहुत ब्रीफ, लंबा चौड़ा टाइटल ना हो, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन एक्यूरेट मैनर कि आप क्या काम करना चाहते हो, आपका जो थीम है, या आपने जो कोई रिसर्च प्रॉब्लम ली है कि मुझे ये डील करना है इसके साथ, या कुछ रिसर्च क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल इफेक्टिवनेस के लिए आपने बनाए कि मैं इफेक्टिवनेस डिटरमिन कर रहा हूँ कंज्यूमर लॉ की. तो उसके बेस पर आपने कुछ क्वेश्चंस बताए कि क्या फॉरम में कैसे काम हो रहा है या क्या पावर्स हैं, और आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. तो आपका जो थीम है उस थीम से आपका टाइटल मैच होना चाहिए. आपका ये नहीं कि टाइटल कुछ भी जा रहा है और अंदर कुछ और ही आपका आ रहा है. तो टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स ये आपके, और रिसर्च क्वेश्चंस जो ये होते हैं ये आपकी एक सिमेट्री में आने चाहिए. तो सबसे पहले तो मेन आ जाता है आपका टॉपिक. फिर जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में भी आएगा और आपका रिसर्च सिनॉप्सिस में भी आएगा. तो उसमें हमने क्या करना है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी टॉपिक पे कि ये टॉपिक क्या है और आपका रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिसर्च आप क्यों कर रहे हो या क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फिर आप हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया, जो उसमें आप क्लियरली आउटलाइन करोगे नॉलेज गैप्स. अब ये थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम, एक्चुअली हमारे पास यहाँ बहुत समय नहीं है कि हम डिटेल में जाएं बहुत ज्यादा, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कि मुझे
टेस्टिंग करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि मुझे कंज्यूमर फोरम दिल्ली की स्टेट कंज्यूमर फोरम का कितना सक्सेसफुल रेट है इन डिस्पोजल, तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि इट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, the consumer forum working in Delhi is not effective in speedy disposal or it is very effective। तो वो हम टेस्टिंग करते हैं अपने रिसर्च से, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, नहीं हाइपोथेसिस नहीं बनाते इस तरह का, कोई भी सिंपल क्वेश्चंस बना देते हैं 3-4 कि भाई कंज्यूमर फोरम इन दिल्ली इज वर्किंग इज लाइक दैट और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर, 3-4 हमने कर लिए एंड उन पैरामीटर्स पे हमने काम किया। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर लिस्टेड होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अब ये भी नहीं कि 10 बना दो, 5 बना दो, 2-3 रखो, छोटे रखो, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आपका छोटा सा है, क्योंकि आप जितना लेंदी करेंगे, जितना ज्यादा जाएंगे तो आपका टाइम उतना कंज्यूम होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क से हिसाब से आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रखें, मिनिमम रखेंगे तो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप आइडेंटिफाई कीजिए, अगर आपको रिसर्च क्वेश्चंस बनाने आप बनाइए, या आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना आप कीजिए। आप नहीं भी करेंगे ये सब चीजें, क्योंकि आप प्रोजेक्ट लेवल पे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती स्टूडेंट से कि आप थीसिस लिखें पीएचडी का, या आप उस तरह की डिसर्टेशंस लिखें जैसे मास्टर्स लेवल पे करते हैं, बट बेसिक इसका प्रोजेक्ट एक वही है कि आपको एक बेसिक बनानी आनी चाहिए प्रोजेक्ट या रिसर्च आप कैसे करते हैं। फिर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद जो आपके सिनॉप्सिस का पार्ट है। अब इसमें आपने क्या बताना कि ओवरऑल रिसर्च डिजाइन क्या है। अब कई तरह की स्टडीज होती हैं हमारी, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, या मिक्स मेथड्स होता है। अब क्वालिटेटिव जो होती है बेसिकली मोस्टली डिस्क्रिप्टिव हो गई या नरेटिव हो गई। अब क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली न्यूमेरिकल, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं या स्टैट्स की बात करते हैं, और मिक्स भी हम यूज करते हैं। हम डॉक्ट्रिनल भी करते हैं, नॉन डॉक्ट्रिनल भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब हम डॉक्ट्रिनल की बात करते हैं तो हम मोस्टली क्या फोकस कर रहे हैं कि लॉ क्या है, हमने लॉ का कंपैरिजन किया, हमारे पास जो अवेलेबल रिसर्च है, लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, उनमें जो है उनको हमने यूज किया और हमने डॉक्ट्रिनल रिसर्च किया, अपना एनालिसिस किया। लेकिन जब हम नॉन डॉक्ट्रिनल करते हैं, जिसे हम एम्पेरिकल भी बोलते हैं, उसमें हम प्राइमरी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी सोर्सेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम चाहे सर्वे किया हमने या इंटरव्यू किया, जैसे मैंने कंज्यूमर का, मैं चाहती थी कि अवेयरनेस लेवल पता करूं, तो मैंने एक सैंपल स्टडी लिया, मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना लोगों को अवेयरनेस है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए और मैंने अपने इंटरव्यू एक मैंने क्वेश्चनर बनाया और मैंने इंटरव्यू टेक्निक भी यूज की। कहीं पर क्वेश्चनर मैंने बांट दिया, किसी से मैंने इंटरव्यू से क्वेश्चंस लिए या सर्वे किया, थोड़ा लार्जर लेवल हो गया तो सर्वे किया। तो ये भी आपका आ जाता है प्राइमरी सोर्सेज जो आपने यूज किया, आपने फर्स्ट हैंड रिसर्च की, तो ये एम्पेरिकल रिसर्च है। इवन सेकेंडरी सोर्सेज भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब कुछ है। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, या एक्ट्स हैं या स्टैट्यूट्स हैं, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन, प्राइमरी हमारे सोर्सेज हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज में नहीं आते, ये प्राइमरी सोर्सेज की डेफिनेशन में ही आते हैं, तो यू कैन यूज दैट। तो कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट करें, लेकिन आपको क्लियरली मेंशन करनी है वो अपने सिनॉप्सिस में। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मैंने गलती देखी है स्टूडेंट की, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिफाइन करने लग जाते हैं अपने सिनॉप्सिस में। मुझे नहीं जानना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, मुझे ये जानना है कि आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की है। तो आप ये ध्यान रखें, आप ये लिखें कि हम डॉक्ट्रिनल रिसर्च करेंगे, हम ये सोर्सेज यूज करेंगे, या हम नॉन डॉक्ट्रिनल करेंगे तो हम प्राइमरी सोर्सेज यूज करेंगे, हमारे ये टूल्स हैं। टूल्स की बात करते हैं तो इंटरव्यू है या सर्वे है या क्वेश्चनर है, हम इनका यूज करेंगे। फिर हमारा सैंपल ऑफ स्टडी भी है, उसमें आ जाएगा इंपेरिकल में 50 लोग का है, 100 लोग का है, वो हम करेंगे। और इवन हमें ये भी मेंशन तब करना होता है कि स्टडी ग्रुप क्या रहेगा, खाली कंज्यूमर है, या अब कई बार आप ऐसे करते हो जो कंज्यूमर फोरम से जजेस हैं, आप उनका भी कई बार आप ले लेते हो, या एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी व्यू ले लेते हो। तो आपका स्टडी ग्रुप क्या है, दैट हैज टू बी मेंशन्ड। उसके बाद है आपको ये बताना है कि आपका डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, जैसे वही मैंने अभी बताया, टूल, सैंपल, टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अपना डेटा एनालिसिस प्लान या स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं हम एमएस ऑफिस यूज करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे टू गेट द एम्पिरिकल डेटा दैट यू कैन मेंशन इन योर रिसर्च सिनॉप्सिस। देन इज लिटरेचर रिव्यू, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर कहीं बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखते हैं, मोस्टली सिनॉप्सिस आता है मैंने देखा नहीं लिखते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप when you are you know what is literature review, आप briefly summarize करते हो जो relevant existing studies हैं, या और आपकी रिसर्च कैसे रिलेट करती है उनके साथ बेसिकली। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े या बुक पढ़े, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया पे मुझे काम में कुछ लिखी होना है, ये मैं इस पे काम कर सकता हूँ कि कहीं नया कुछ दिख नहीं रहा या इसकी जरूरत है। तो
तो आपको लिटरेचर रिव्यू, आपने क्या क्या पढ़ा, उसका एक क्रक्स लिखना है और फिर बताना है कि मेरी स्टडी कैसे इनसे हटके है, क्या गैप्स आपने आइडेंटिफाई की, इसलिए आपको लगा कि मुझे इस पे रिसर्च करनी है। फिर आपने क्यों करनी है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठाया और कर लिया, नहीं, क्यों करनी है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू से पता लगेगा कि हमें ये काम हुआ है और ये गैप्स हैं और मुझे इस पे काम करना है। फिर उसके बाद आता है स्कोप एंड लिमिटेशंस भी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताना है कि आपका एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा रिसर्च में, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, और लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरे इंडिया में कर लूंगी। अगर मैं एम्पेरिकल रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे अपना, मैं उड़ीसा में रहती हूँ या मैं कहीं केरला में रहती हूँ तो मैं अपने स्टेट में कर रही हूँ, या मैं दिल्ली में रहती हूँ मैं अपने स्टेट में कर रही हूँ। तो लिमिटेशंस यू हैव टू पॉइंट आउट। कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम भी है, मनी भी है, बिकॉज लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई फंडिंग नहीं है, तो आपको लिमिटेशंस अपनी बतानी है कि हमें ये लिमिटेशंस हमारी स्टडी में रही। फिर उसके बाद हम सिनॉप्सिस में हल्का, उसमें भी हम लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस थोड़ा सा देते हैं, क्योंकि हमने कई जगह से रिसर्च पढ़ी, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, तो अब थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी उसको भी ऐड अपने सिनॉप्सिस में कीजिए। अब स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट में मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम करते हैं तो सिनॉप्सिस आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखें, क्लियर कंसाइज लैंग्वेज यूज करें, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, नहीं कि एक पैरे का कोई अगले नेक्स्ट पैरे से कोई लिंक ही नहीं है। लॉजिकल फ्लो में लिखें, चाहे ये आपका सिनॉप्सिस है या आप स्टूडेंट का प्रोजेक्ट वर्क है। अब आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर आप एक ही जगह लिखते जाते हैं तो उसमें पढ़ने वाले को दिक्कत लगती है। बट जब आप इग्नू का भी पैटर्न देखें, मटेरियल देखें, सब हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग्स आती हैं, दैट इज टू गिव लर्नर कि हाँ ये पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और लॉजिकल कोहेरेंट पैटर्न में लिखना है उसको। फिर रिव्यू करना अपना, एक बार आप दोबारा से जरूर पढ़ें, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स बड़े होते हैं, कोहेरेंस होनी चाहिए, एक एडिट जरूर करें अपने सिनॉप्सिस को। और मैं ये कहूंगी जो गाइडेंस हमने दे रखी है, जब आप बना रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट गाइडेंस को जरूर पढ़ें, अपने सामने रखें, तभी आप उसको प्रॉपरली बना पाएंगे सिनॉप्सिस को। हाँ जी। यस मैडम, यस मैडम, थैंक्स मैम। आपने बहुत डिटेल्स में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस उनको किस तरीके से बनाना है, और आपने उसके जो स्टेप्स हैं वो भी आपने बताया, मेजर हेडिंग्स भी आपने बताई, और आपने बाद में लास्ट में स्ट्रक्चर को भी आपने इम्पोर्टेंस आपने दिया है कि उसका स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना क्यों जरूरी है। और यहाँ पर मैडम मैं भी एक चीज जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि डियर लर्नर्स, ये जो हमारा सिनॉप्सिस होता है, ये फ्यूचर की किसी एक्टिविटी का आपका प्रायर प्लानिंग है। आप पहले ही प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप किस तरीके का रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट वर्क करना चाहेंगे। तो जब आप अपना सिनॉप्सिस लिखेंगे, आपने नोटिस किया होगा मैडम भी जब आपको गाइड कर रहे थे तो बहुत सारी जगहों पर मैडम फ्यूचर टेंस में बात कर रहे थे कि आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे। तो ये जो आपका जो फ्यूचर टेंस आपको ज़्यादातर जगह पर हो सकता है जब आप अपना पैराग्राफ्स लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस की शेप में ही अपने सेंटेंसेस को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्कस योर फ्यूचर प्लान्स, योर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो ये मैडम आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स अशोक जी, आपने भी ये बहुत अच्छी बात कही कि फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये बहुत आसान भाषा में आपने उनको बात समझा दी। ये मतलब बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इजीली बच्चे समझ पाएंगे इस चीज को, बाकी कुछ याद ना रखें चाहे, तो ये अच्छा मुझे लगा ये चीज का। तो तो थैंक यू अभी मैम। जैसे हाँ जी, तो जैसे हम अब सिनॉप्सिस की बात की अभी, तो हमने जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं तो ये सारे मैम पॉइंट तो कवर होंगे उसमें भी। जी, हाँ जी, हाँ मैम जी। मैम सिनॉप्सिस से ही रिलेटेड एक दो और हमारे जो स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। मैम एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का जनरली रहता है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट वो करेंगे, क्या किसी सुपरवाइजर के सुपरविजन में करेंगे, क्या इसके लिए उनको कोई गाइड चाहिए होगा, और अगर उनको किसी सुपरविजन में, किसी सुपरवाइजर के अंडर उनको ये रहते हुए अपना सिनॉप्सिस बनाना है, प्रोजेक्ट करना है, तो उनको वो सुपरवाइजर, वो गाइड उनको कहाँ से अवेलेबल होंगे, कहाँ से मिलेंगे? तो इस पॉइंट पे भी मैडम प्लीज आप थोड़ा सा हमें गाइड करिए। देखिए, अभी तक तो हमारा जो ये कंज्यूमर वाला प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने रिसर्च सुपरवाइजर का प्रोविजन है, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट सबमिट कर सकता है अगर रिसर्च सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे है जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स हैं स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर पे, दे कैन बी अ रिसर्च सुपरवाइजर, और स्टूडेंट अपने भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट की वो लीगल फील्ड से हो। जैसे हमारा क्वालिफिकेशन रहता है एकेडमिक काउंसलर्स का कि
असिस्टेंट लेक्चरर की जो क्वालिफिकेशन होती है, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लेक्चरर, वो सेम क्वालिफिकेशन द लॉ एरिया और अलाइड डिसिप्लिन में, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, आप मेरे ख्याल से रीजनल सेंटर की हेल्प भी ले सकते हैं, और स्टडी सेंटर में जो एकेडमिक काउंसलर है दे कैन आल्सो सुपरवाइज। अब क्वेश्चन क्या आता है, अभी मैं थोड़ा सा ये भी देख रही हूँ कि जब से मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली पहले हमारे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इलूमलाई भी थे, 3-4 साल पहले वो रिटायर हो गए। तो आई नोटिस कि क्या हो रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है शायद, स्टूडेंट्स का हमें ना सिनॉप्सिस भेजता है यहाँ पे, उसमें रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड होता है ऑलरेडी, तो हमारी गाइडलाइंस में क्लियरली ये लिखा है कि हम वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ले रहे हैं, हम वापस नहीं लिखेंगे कि अप्रूव हो गया नहीं हुआ, बिकॉज अगर वो अप्रूव्ड है ऑलरेडी, आपके उसमें दस्तखत है रिसर्च सुपरवाइजर के, जो आपके स्टडी सेंटर में एकेडमिक काउंसलर है, आपने आइडेंटिफाई किया फ्रॉम द ऑन द सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और सब्जेक्ट के हो, वहां थोड़ा वो हो जाता है। तो आप वो प्रपोजल हमें भेजते हैं जब, तो हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, तो आप इस स्टेप को आप मेरे ख्याल से आप अवॉइड कर सकते हैं। आप हमें, अगर आपको रिसर्च सुपरवाइजर से अप्रूवल मिल गई है, वो फाइनल है, आप हमें बेशक ना भेजें स्कूल में, लेकिन आपके पास वो अप्रूवल होनी चाहिए। अदरवाइज प्रोजेक्ट जब आप जमा करेंगे, उसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट लगाना होता है रिसर्च प्रपोजल अप्रूवल का, वहां जरूरत है, और जो सर्टिफिकेट लगाना होगा कि हाँ मेरे अंडर पे प्रोजेक्ट किया है कंप्लीट। तो प्रोजेक्ट के सबमिशन के टाइम पे दो आपको एनेक्सेस चाहिए होते हैं, अदरवाइज आपको, या फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च सुपरवाइजर नहीं मिला, आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, या वहाँ पे स्टडी सेंटर एक्टिवेटेड नहीं है, तो हमारे फैकल्टी को आप लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडीज नंबर सब डिस्प्ले हैं वेबसाइट पे, और हम में से कोई भी आपको गाइड कर सकता है। जैसे कई स्टूडेंट्स का मेरे पास आता है, तो डायरेक्टली वो मुझे सिनॉप्सिस या टॉपिक भेजते हैं, तो आई अप्रूव देम ऑन मेल, और फिर परफॉर्मा जब आता है तो वी विल साइन एंड गिव इट टू देम। तो आप डायरेक्टली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत आती है। तो रिसर्च सुपरवाइजर का अप्रूवल जो है हमारे हिसाब से फाइनल है प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट्स इधर उधर ना भटके ज्यादा, और सबमिशन के टाइम पे उसको वो दोनों चीजें लगानी है, ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट प्लस ये अप्रूवल वाला। और स्कूल में भेजना चाहते हैं तो हम रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, अगर बाई चांस आप हमें लिखते हो कि हमें सुपरवाइजर दो, वहां हम आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप अप्रूव सुपरवाइजर का परफॉर्मा भेजते हो, वो हम सिर्फ रिकॉर्ड में रखेंगे, उसकी रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये होता है कि, क्योंकि स्टूडेंट्स को रहता है कि आया नहीं रिप्लाई कई बारी, तो ये क्योंकि हमारी इतने सारे स्टूडेंट्स के आते हैं, तो हम वी कैन नॉट रिप्लाई, ये हो जाता है। कई बार नंबर्स भी नहीं होते, ऑनलाइन आता तो हम फिर भी रिप्लाई कर देते हैं, ऑफलाइन में हमें दिक्कत रहती है इस चीज की। हाँ जी, यस मैडम। तो मैडम क्या यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है जिस बारे में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पर हमें 2 टीचर्स की जरूरत पड़ती है? एक टीचर तो जिनके सुपरविजन में उनको अपना साइनॉप्सिस तैयार करना है, और दूसरे टीचर जो उनके साइनॉप्सिस को इवैल्यूएट करेंगे और अप्रूव करेंगे, अप्रूवल कन्वे करेंगे। नहीं, हमारे इसमें हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आपका रिसर्च सुपरवाइजर है वही आपको अप्रूवल दे रहा है, तो इवैल्यूएट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। वो अगर वो हमारा मास्टर्स लेवल पे होता तो हम करते उस चीज को, लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगता है वो नेसेसरी नहीं है। राइट मैडम, राइट। और एक मैडम, स्टूडेंट्स जनरली हमसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने अपना रिसर्च सिनॉप्सिस बना लिया है, प्रोजेक्ट प्रपोजल उनका तैयार हो गया, तो अब क्या वो सिनॉप्सिस को भी उनको स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होता है या रीजनल सेंटर पर जमा करवाना होता है? तो सिनॉप्सिस बनाने के बाद का नेक्स्ट स्टेप मैडम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिनॉप्सिस को जमा कराने का एक रिकॉर्ड रहता है, मोस्टली तो सब जगह रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर्स में जमा होते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे स्कूल के पास भी आते हैं तो हम जमा कर लेते हैं, तो वो जमा कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड पर्पस के लिए एक फुलफिल करता है, स्टूडेंट्स के लिए भी वो हेल्पफुल है कि हाँ हमने सिनॉप्सिस जमा किया हुआ है कभी। अदरवाइज अगर वो एक्सपेक्ट करें कि हम हर किसी को अप्रूवल अलग से दोबारा इवेल्युएट करके आए, तो वो एक्सपेक्ट ना करें, मुझे लगता है शायद आपके रीजनल सेंटर में भी ये अप्रोच यूज करते होंगे, मैं नहीं जानती ज्यादा उस बारे में। हाँ जी, क्योंकि स्टडी सेंटर में जब स्टूडेंट देता है तो हाथ के हाथ उनको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन की आपका इवेल्युएट ठीक है, अप्रूव्ड है। तो अदरवाइज सुपरवाइजर का परफॉर्मा आपके पास, आप उसको रिकॉर्ड रखिए। बट आप जो सुपरवाइजर कर रहे हैं, देखिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एलिजिबल पर्सन होना चाहिए। तो एकेडमिक काउंसलर्स तो हमारे सारे एलिजिबल ही हैं, या फिर जो लॉ टीचर्स हैं या अलाइड में आपके टीचर्स हैं, अलाइड डिसिप्लिन में, आप वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर सी गाइडलाइन है ये। राइट मैम, अब हम आगे बढ़ेंगे, और मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे लर्नर्स को ये बोला था
कि आपको क्योंकि ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है और आपको इसमें सर्टिफिकेट लेवल को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें उनको किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। कुछ स्टेप्स तो जैसे आपने साइनॉप्सिस में एक्सप्लेन किया है, कुछ स्टेप्स तो वही रहेंगे, लेकिन जब अपना साइनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद जब हमारा लर्नर आगे फर्दर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्टेज पर आता है, तो फिर वो किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मैम थोड़ा इस बारे में भी प्लीज हमें गाइड करें। जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर लिटरेचर रिव्यू, स्कोप एंड लिमिटेशन, ये तो आपका एक सेट पैटर्न हो गया जो सिनॉप्सिस में भी आया और प्रोजेक्ट वर्क में भी आया। उसके बाद एक ना क्या होता है, कई बार हम चैप्टराइजेशन भी बनाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में सर्टिफिकेट में आप चैप्टराइजेशन नहीं भी करें कोई बात नहीं है, डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं अबाउट द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, क्या है, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस क्या है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। एक थ्योरेटिकल, जैसे कहते हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपने एक चैप्टर बना दिया, आपने ऐड किया उसको। फिर मेजर आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड, स्पेशली जब आपकी नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, आपकी एम्पेरिकल रिसर्च है, तो आपको अपनी फाइंडिंग्स उसमें जो आपने डेटा कलेक्ट किया, पहले तो आप टूल्स उसमें फिर क्लियरली बताएंगे, सिनॉप्सिस में भी आपने बताया, पर यहाँ आप फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सैंपल साइज आपने किया और कैसे आपने कंडक्ट किया। फिर आपने उसको एनालाइज करना है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया ड्यूरिंग द स्टडी, और आप उसको कैसे दर्शाएंगे, टेबल्स, फिगर्स को यूज करके, और फिर उसका टेबल क्या दर्शा रहा है आपका, तो इन दैट फॉर्म यू कैन डू। फिर आपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि हाँ इसका रिजल्ट ये आया, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करना है, उनको रिलेट करना है अपने एग्जिस्टिंग अगेन लिटरेचर रिव्यू के साथ, और आपने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए थे। तो जब भी आप एनालाइज करेंगे डेटा को या इंटरप्रिटेशन देंगे, अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे, तो क्लियर कट आप बुलेट्स में आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, टेबल्स एंड ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, बट वो रिलेट होने चाहिए आपके रिसर्च क्वेश्चन से। आप कुछ और बता रहे हैं, वो उससे काम नहीं बनेगा। अगर आपने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया तो उनका उत्तर देना। आपने समझ लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन फ्रेम किए, तो क्वेश्चन पहला उसका उत्तर, क्वेश्चन दूसरा फिर उसका उत्तर, तो उससे उसको आपने हर क्वेश्चन को एनालाइज और बताने हैं अपनी फाइंडिंग्स कि आपने क्या ड्रॉ किया। फिर मेजर आ जाता है आपका कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन लास्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैडम। आप उसमें क्या करते हो, कंक्लूजन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं मेन फाइंडिंग्स को, और ये सजेस्ट करते हैं व्हाट आर द पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप फॉर द फर्दर फर्दर रिसर्च। अब जब आपने स्टडी किया, बेस्ड ऑन योर स्टडी विच यू हैव डन, द कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। अब रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो भी आपकी कंक्लूजन्स में से आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जनरली इधर उधर से उठा के डाल देते हैं। आपने जो पढ़ा, आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, उसमें से आप कॉल आउट कीजिए अपनी रिकमेंडेशंस, और वो कुछ वैल्यूएबल होनी चाहिए कि भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, या अभी तो आप प्रोजेक्ट अपने लिए कर रहे हैं, खैर, तो सोसाइटी में उसकी क्या बेनिफिट होगा, क्या वैल्यू होगा, तो कुछ अच्छा निकल के रिकमेंडेशंस आना चाहिए या सजेशंस आना चाहिए, ऐसा कि कैसे ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है, या हम जब कहते हैं कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है या एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स और हो सकती हैं, किस चीज की और जरूरत है, तो दैट यू हैव टू पुट इन योर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। देन you have to give again references and bibliography, that is very important। अब इसमें भी क्या है, आपने जितने भी सोर्सेज यूज किए हैं, यू हैव टू साइट दैट। अब इसमें ना एक साइटेशन स्टाइल का इशू आ जाता है स्टूडेंट्स को कि कैसे करें। तो आप कोई भी साइटेशन स्टाइल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट में जाते हैं तो हम मोस्टली इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का साइटेशन स्टाइल यूज करते हैं। आप वो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपका नेम ऑफ द ऑथर आ गया, आपका टाइटल ऑफ द बुक या टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ गया, रिसर्च पब्लिकेशन, ईयर, पेज नंबर, ये बहुत सिंपल सा है ये वाला। लेकिन अगर और भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे सोशल साइंसेस के बच्चे हैं या एजुकेशन के, या डिफरेंट, क्योंकि हमारा ग्रुप डिफरेंट डिसिप्लिन से है, तो आप एपीए साइटेशन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, आप एमएलए साइटेशन स्टाइल भी कर सकते हैं। जो भी करें कंसिस्टेंट करें, एक यूज करें। तो एपीए में हम क्या करते हैं, पहले हम ऑथर का नाम लिखते हैं, फिर हम ईयर वहां पहले डाल देते हैं, उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस है। तो आप कोई भी साइटेशन स्टाइल यूज कर सकते हैं, बट आपको सिमेट्री रखनी है, एक जैसा यूज करना है। फिर अगर आपने कोई अपेंडिसेस लगाने हैं, कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज किया है, आपने क्वेश्चनियर अगर आपने प्राइमरी स्टडी की है, या कंसेंट फॉर्म है, या आपको कुछ रॉ डाटा, हम नहीं कहते वैसे स्टूडेंट्स को जनरली लगाने के लिए, लेकिन अपेंडिसेस में आप ये चीजें लगा सकते हैं, क्वेश्चनियर हो गया या सप्लीमेंट्री मटेरियल एज अ अपेंडेंस। और इसके बाद आप ये तो जनरल है, क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर आप, क्योंकि मुझे लगता है अभी इतना समय नहीं है कि हम बहुत ओवर डिटेल्स में इसकी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गाइडलाइंस ये ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। एक तो बहुत सिंपल ही लैंग्वेज यूज करें और क्लियरली एक्यूरेटली करें, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी
स्पेसिफिक होने चाहिए, हमने पहले भी कहा था, क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि दो दो चीजें मिक्स, हम कई बार करते हैं वी वांट टू डू स्टडी ऑन दिस एंड दिस, तो हम दो मिला देते हैं। डोंट डू लाइक दैट, कि आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक के अंदर दो मत बनाइए। Sometimes you are saying we are critically examining or we are doing a comparative approach, हम कहते हैं we will do comparative analysis of legislation in India and US, ठीक है, that is okay, but अब कहें we are doing comparative analysis of laws in India and US and इतना इतना बहुत लंबा कर दिया आपने, और एक और ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया and we will determine the role of this also, तो नहीं, आपको अलग अलग करना है, क्लियर करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव, एक ही में मर्ज नहीं करने। फिर है अब स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया, प्लीज उसमें कोई भी ओमिट ना करें, वो सारे स्टेप्स फॉलो करें, इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू, और लिस्ट ऑफ टेबल्स भी आपने लगाना, अगर आपने यूज किया तो वो भी अपेंडिक्स शुरुआत में आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स भी आना चाहिए, फिगर्स भी आना चाहिए, उसकी भी प्रीफेज आप जब करेंगे, इंडेक्सिंग करनी जरूरी है, जो भी आप रिसर्च करते हो तो इंडेक्स पे जरूर बनाए। अब रिपोर्ट में जो मेन है वो आपका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, गाइड का एक्नॉलेजमेंट भी आपकी होनी चाहिए, अगर आपने किसी ने आपको हेल्प की है तो आप उसको एक्नॉलेज भी कीजिए, तो एक्नॉलेजमेंट जरूर दीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ गाइड आना चाहिए आपका उसके अंदर। अब सबसे मेनली आपको देखना है कि आप गाइडलाइन सबसे पहले पढ़ें जो हमारी प्रोजेक्ट की हैं, ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। सुपरवाइजर क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट पढ़ता नहीं है गाइडलाइंस को, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमें। सुपरवाइजर आप अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को आप बात करें, अपना प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अलॉट कराएं, अगर नहीं है तो आप, मुझे लगता है कि आप रीजनल सेंटर को भी लिख सकते हैं, हमारे स्कूल ऑफ लॉ को भी लिख सकते हैं, हेडक्वार्टर्स में हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि सुपरवाइजर आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और फिर आप अपना सिनॉप्सिस बनाइए और उसको सबमिट कीजिए, और उसमें आपको जैसे हमने बताया पूरा क्लियर आपकी वो होने चाहिए, पूरे स्टेप्स होने चाहिए। अब मेन है कि जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, अभी हमने सिनॉप्सिस बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, अब आ जाता है सबमिशन का, है ना जी। तो हाँ, अभी आपने पहले भी पूछा था कि प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम भेजें, आप भेज सकते हैं रीजनल सेंटर स्कूल को, पर हम रिकॉर्ड के लिए रखेंगे उसको, और आप अपने पास अपना रिसर्च प्रपोजल की कॉपी भी रखिए। आपने अगर हमें भेज दिया और आपने अपने पास कॉपी नहीं रखी, क्योंकि हम वापस नहीं भेज पाएंगे आपको कि भाई हाँ हम आपको वापस अप्रूव करके भेज रहे, तो हम वो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, और अप्रूवल जो है रिसर्च सुपरवाइजर की फाइनल है। अब वंस आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, जब हम कहते हैं, तो आप ना आपका एक बार अप्रूव हो गया तो आप बिल्कुल उसी वक्त काम शुरू कर दीजिए, आप किसी भी और चीज की वेट मत कीजिए, और अपना रिसर्च कलेक्शन, अपना डेटा कलेक्शन शुरू कर दीजिए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना शुरू कर दीजिए। अब प्रोजेक्ट जो है इसमें हमारा मार्किंग सिस्टम भी है कि 100 मार्क्स का हमारा रहता है, तो 50% स्टूडेंट को लाने होते हैं फॉर क्लियरिंग द प्रोजेक्ट, तो ये उसका पासिंग परसेंटेज है, आपको एटलीस्ट 50% आपके आने चाहिए। अब जो लास्ट में मुझे लगता है कि थोड़े से पॉइंट्स जो हमारे इग्नू की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन भी अलाउ कर रहे हैं, आप अगर इग्नू वेबसाइट पे जाएंगे तो स्टूडेंट जो है ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, जो लिंक एक्टिवेट होगा इग्नू की वेबसाइट पे, या फिर आप हेडक्वार्टर्स में भी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं इग्नू के प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। पर उसमें जनरली जो हम कहते हैं, जब लास्ट डेट की बात आती है, अभी क्योंकि दिसंबर टर्म एंड एग्जाम आने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए कि अक्टूबर के एंड तक अपना प्रोजेक्ट जो है भेज दें। उससे पहले आई थिंक फीस भरनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म एंड एग्जाम का जब आपका पोर्टल खुलेगा, तो मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स का हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं हमें, तो हम जब देखते हैं तो पता लगता है कि टर्म एंड एग्जाम में फॉर्म भरा स्टूडेंट्स ने 3 कोर्सेज का, CPI 104 का पेमेंट नहीं किया है वैल्यूएशन का, तो वो उन्होंने उसका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा एक तरह से, तो वो इवेल्युएट नहीं हो पाती, और प्रोजेक्ट सेक्शन सबको लिखता नहीं है वापस, आपका फी नहीं आया तो हम नहीं करेंगे, ये थोड़ा लैप्स है हमारे पार्ट में भी, पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो इंडिविजुअली नहीं लिख पाते हैं, तो ये बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है, आपको कोशिश करनी है कि अक्टूबर तक अपना जमा कर दें, और जून सेशन अगर अगला है तो अप्रैल तक हम कहते हैं, जनरली 2 सेशंस में जब हम काम करते हैं। तो अब 2025 का भी एक्टिवेट होने वाला है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं रेगुलरली इग्नू की, तो आपको लिंक थोड़े दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट फीस है वो, क्योंकि हमारा ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो ये आपका 300 रुपए है, क्योंकि 4 क्रेडिट का है। अब रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है सिंगल PDF फॉर्मेट फाइल में। अब ये नहीं है कि अलग अलग एनेक्सर अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं, नहीं, आप सारे एनेक्सर्स, जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका सिनॉप्सिस है, और आपका जो अगर
आजकल तो बायोडाटा की भी गाइडेंस में अगर आप देखें तो बायोडाटा भी लगाने को बोला हुआ है, तो आप लगा सकते हैं स्मॉल बायोडाटा। उससे एक्चुअली थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का पता लग जाता है, और ओरिजिनलिटी जो सर्टिफिकेट है विच शुड बी ड्यूली साइंड बाय स्टूडेंट एंड आल्सो योर प्रोजेक्ट गाइड। तो ये एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आपने बनाकर जमा करना है। और आपको लास्टली मैं यही कहूंगी कि जो स्कैन पेजेस आप जब आप करते हो, आप ध्यान रखिए, जब हम क्लियर होने चाहिए। क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन आपकी एवेल्युएशन के लिए भी जाती है, तो जो ब्लर होते हैं ना, तो वो आप पढ़ नहीं पाते, पढ़ने में नहीं आते हो। तो क्लियर होने चाहिए, वेल लाइटेड होने चाहिए, ब्लर्ड नहीं होने चाहिए किसी तरह में, और एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग फॉलो करो। ये नहीं होना चाहिए एक पे लैंडस्केप में आ रहा है तो एक पोर्ट्रेट में आ रहा है, नहीं। तो आपको जब पीडीएफ फाइल बनानी है वो बहुत ध्यान से बनानी है, और करेक्ट पर्टिकुलर्स के साथ बनानी है। जो पहला पेज आपका प्रोजेक्ट का है, उसमें आप क्लियरली अपना टाइटल डालें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, अपना नाम बताएं, अपना प्रोग्राम कोड डालें, एनरोलमेंट नंबर जो आपका आईडी कार्ड में है। स्टूडेंट क्या करता है, कई बार ना अपना वो कंट्रोल नंबर डाल देता है, तो कंट्रोल नंबर नहीं डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है जो आपके आईडी कार्ड में दिया है, रीजनल सेंटर का कोड, फिर आपका कोर्स कोड जो है इसका, जैसे CPIP 104 है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप उसमें डाल सकते हैं। तो फर्स्ट पेज में आपका ये जरूर आना चाहिए जब आप जमा करें। तो अब जैसे मैंने पहले बोला कि आप कंसिस्टेंट पेज ओरिएंटेशन रखें। फाइल भी ना थोड़ी छोटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, वहां पे दिया नहीं होता कि फाइल की कितनी लिमिटेशन है, कितना साइज के भी होता है। तो आप कोशिश करें उसको लेस देन 10 MB रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अपना अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो आपकी फाइल अगर बड़ी होगी तो वो आपको लगेगा कि आपने कर दिया, लेकिन वो कई बार अपलोड नहीं होती है। तो आप ये बार बार जरूर एक बार चेक करें प्रॉपर कि वो अपलोड हुआ है कि नहीं। और आपका अगर कभी इनकम्प्लीट सबमिशन है तो उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, ना वो कम्युनिकेट कर पाती है। तो आपको खुद ही ध्यान करना पड़ेगा इस बात का कि आपका प्रॉपरली अपलोडेड हो गया है। और जो स्टूडेंट्स जो हैं हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें जो रिसीट है आपकी फी पेड की, वो भी उसमें लगाएं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, ताकि इवेल्युएशन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना है। या जब आप अपलोड कर रहे हैं तो आप, अगर आपने टी फॉर्म, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिडर नहीं होगी इवेल्युएशन के लिए अगर आपने टी फॉर्म उसका नहीं भरा है तो। अगर अब कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स भी आती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑर्डर में नहीं है, आपने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, या फॉर एग्जांपल परफॉर्मा नहीं है, या सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ भी है। तो अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम कम्युनिकेशन नहीं देंगे इस बात की। तो इसलिए आपको बहुत जागरूकता से काम करना है कि आपकी जो गाइडलाइंस लिखी हैं, जो इंस्ट्रक्शन जब आप फॉर्म करते हैं ना, जब आप अपलोड करते हैं, तब भी पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि आपको ऐसे करने। आप उसको प्लीज देखें, ये अब स्टूडेंट का जिम्मेवारी है। बाद में वो यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करें इस बारे में कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अपलोड होना चाहिए, आपने देखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी शायद आपको इसमें नहीं लिख पाएगी। अब इनकम्प्लीट सबमिशन का क्या होता है कि वो रिमूव हो जाते हैं, अब वो आपको ही देखने के अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये बात का ध्यान, आप नहीं तो फिर आपका क्या होता है कि वो नेक्स्ट सेशन में चला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें आपको 2 साल मिलेंगे। आप उस 2 साल के दौरान के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें, क्योंकि अगर आपका कुछ भी लक्यूना आया या कुछ प्रॉब्लम आया तो नेक्स्ट सेशन के लिए पेंडिंग हो जाएगा। वो भी आपको चेक करना है खुद से कि भाई मेरा हो गया है कि नहीं। इस मामले में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी मुझे लगता है यूनिवर्सिटी उतना एंटरटेन नहीं कर पाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जब खत्म हो जाती है तो भी बड़ी क्वेरीज आती हैं कि अब एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड जब होता है तो उसका इंटीमेशन नेट पे आ जाता है, आई थिंक रीजनल सेंटर्स में भी आ जाता है और स्टूडेंट्स को चला जाता है। लेकिन बियॉन्ड दैट हम एक सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि इतना हमारा स्टूडेंट इतना सारा है और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वो आप डेट आप एक्सटेंड होगी वो यूनिवर्सिटी में सबके लिए होगी, नॉट अ फॉर अ सिंगल पर्सन। तो आपको ये खुद ध्यान रखना है कि अब आप दिसंबर में आ रहा है नेक्स्ट हमारा टर्म है, तो आप अक्टूबर तक कोशिश कीजिए, उसको जमा कीजिए, फॉर्म भरिए। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपको, अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, रिपोर्ट स्टूडेंट ना ईमेल से भेज देते हैं, तो ईमेल्स के थ्रू इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है। वो आप ये कह सकते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, और स्टूडेंट हमेशा कहता रहता है मैंने ईमेल में जमा कर दिया। ईमेल का क्योंकि एक डिवीजन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट सेक्शन, वहां पे आपकी जाती हैं, उनका एक प्रोसेस फॉलो होता है, जो अप्रूव्ड इवैल्यूएटर्स हैं उनको वो भेजते हैं।
तो आप इंडिविजुअली अगर मेरे को भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फैकल्टी हूँ या मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। हम लोग ये करते हैं स्कूल में, इतना फैसिलिटेट करते हैं कि बाई चांस स्टूडेंट ने हमें भेज दी तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में। आपने हार्ड कॉपी स्कूल में भेज दिया तो हम प्रोजेक्ट सेक्शन में उसको भेज देते हैं कि भाई ये डाक से एंट्री करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं और भेजते हैं नीचे कि आप ये वैल्यूएशन हो। लेकिन उसमें हमारी ये जिम्मेवारी नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि स्टूडेंट ने फीस भरी है नहीं भरी है, हम सिंपली एज अ पोस्ट की तरह उसको आगे प्रॉपर डिवीजन में भेज देते हैं। तो कई बार क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट को मिलती नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये भी इशू आ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो, विद इन टाइम सबमिशन हो, लेट सबमिशन में वो नेक्स्ट सेशन के लिए रख दी जाती है, तो उसमें आपको फिर वेट करना पड़ेगा। आप फिर स्टूडेंट्स का आता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा, उनको भी मतलब प्रोएक्टिवली काम करना है अपने लिए। अदरवाइज हम बैठे हैं, इफ दे वांट एनी गाइडेंस, मतलब वो हमें लिख सकते हैं, स्कूल ऑफ लॉ को लिख सकते हैं, आई थिंक projectsections@ignou.ac.in पे भी लिख सकते हैं। अशोक जी आपको इस रीजनल सेंटर में आपको लिख सकते हैं। यस मैम। तो कोई भी क्वेरी हो तो हम ओपन है स्कूल, कोई भी स्टूडेंट को क्वेरी हो दे कैन राइट टू अस। यस, हाँ जी। थैंक यू सो मच मैडम। डियर लर्नर्स, जैसा आपने देखा मैडम ने बहुत डिटेल्ड में जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके साथ शेयर की हैं, हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट योर प्रोजेक्ट और हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। मैडम ने पूरा डिटेल्स में गाइडेंस दी हैं और लास्ट में मैडम ने कवर किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें शेयर की हैं मैडम ने आपसे। और मैडम मैं एक दो चीज़ें और हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैडम जैसे हमारे लर्नर्स ने अभी तक इस चीज़ को समझ लिया होगा कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट कंपोनेंट है हमारे इस सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम का, it is a very important and integral part of our this certificate level program। इसको पूरा किए बिना आपका सर्टिफिकेट कोर्स पूरा नहीं होगा, तो आपको ये प्रोजेक्ट करना ही करना है। और जैसा मैडम ने पूरा डिटेल्स में आपको स्टार्टिंग से ही बताया, कुछ आइडियाज मैडम ने आपके साथ शेयर किए हैं, इनसाइट्स मैडम ने दिया है, उस तरीके के टॉपिक्स आप चूज करके और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और प्रोजेक्ट जमा करवाएंगे। मैडम एक क्वेश्चन है जो जनरली स्टूडेंट्स हमसे पूछ लेते हैं कि एक क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट लिखने में, हालांकि इस बारे में कोई एक निश्चित नियम नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी वन फिक्स्ड रूल अबाउट इट, बट जनरली स्टूडेंट्स आस्क अस कि अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस का, कितनी लेंथ का उनको एक अपना ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। हालांकि इस बारे में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट मैडम आपके अकॉर्डिंग हमारा स्कूल की क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि लगभग इतने के आसपास, मतलब कोई 4 पेज का भी जमा ना करा दे और कोई 400 पेज भी ना बनाए, तो एक जनरली आइडियल लेंथ मैडम कितना रहनी चाहिए? जब हम प्रोजेक्ट या रिसर्च करते हैं, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 50-60 मैक्सिमम 70 हम कहते हैं पेजेस आप रखें, उससे ज्यादा ना रखें, क्योंकि अगर बहुत लेंथी भी लिखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसका, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये तो जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी में आपको बहुत सारा पेजेस निकल जाते हैं। तो आप मैक्सिमम 50 to 70 पेजेस आप रखें, मतलब इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए कि 70 पेजेस से एक्सीड ना हो, ये भी ज्यादा मैं बता रही हूँ, 50 पेजेस भी बहुत है। जी हाँ, 50 पेजेस में एक अच्छा क्वालिटी प्रोजेक्ट बच्चे डेवलप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हो जाता है। हाँ जी, यस मैडम, यस। बहुत मैक्सिमम जाना तब है कि 70 पे गए, अदरवाइज 50 इज आई थिंक, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे सीसीपी में इट्स अ गुड नंबर ऑफ पेजेस। यस मैम, यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, हालांकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है आपके डिस्कशन के दौरान, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स ने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया और इग्नू हेडक्वार्टर ने जो लिंक दिया है अपने पोर्टल पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने वाला, स्टूडेंट्स ने उसको वहां पर सबमिट भी कर दिया, तो मैडम क्या अब प्रोजेक्ट के ही इवैल्यूएशन के बाद स्टूडेंट्स को पास मार्क्स मिल जाते हैं, या इसका कोई वाइवा एग्जाम वगैरह भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है? नहीं, हमारे इस प्रोग्राम में वाइवा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करना है और जो इवैल्यूएट होगा उसके बेस पे मार्क्स है, तो इसमें कोई वाइवा या प्रेजेंटेशन नहीं है इस प्रोग्राम में। राइट मैम, राइट। और मैम आज का एक लास्ट क्वेश्चन और है मैम, जैसे आपने पूरा डिटेल्स में बताया कि
हमारा क्या सिनॉप्सिस कैसे हमें डेवलप करना है, उसमें क्या हेडिंग्स क्या पॉइंट्स होंगे। तो मैडम क्या हमारे इस प्रोजेक्ट का कोई प्रोजेक्ट हैंडबुक हमारे ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है? इस हाँ बारे जी में बिल्कुल। थोड़ा इस बिल्कुल, बारे में थोड़ा प्रोजेक्ट प्लीज वर्क स्टूडेंट्स। रिपोर्ट हमारी CPI 104 के नाम से ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नेट पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे ना CPIP 104 प्रोजेक्ट वर्क ई ज्ञान कोश, तो आपको लिंक आ जाएगा उसमें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ इजीली अवेलेबल है। हाँ यस मैडम, जी, यस मैडम, हाँ जी। थैंक यू सो मच। सो डियर लर्नर्स, आपने देखा कि अभी तक हमने इस 1 घंटे के हमारे सेशन में प्रोजेक्ट कोर्स से रिलेटेड, जो आपका ये कोर्स है जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इग्नू की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप अपना साइनॉप्सिस इस तरीके से डेवलप करें, प्रोजेक्ट इस तरीके से डेवलप करें और इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा का पूरा बनाना है। तो कंप्लीट गाइडलाइंस आज मैडम ने आपको इस प्रोग्राम के दौरान दी हैं। और जैसा मैडम ने अभी लास्ट में भी बताया, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसकी एक हैंडबुक हमारे स्कूल ऑफ लॉ ने तैयार की हुई है और वो हमारा जो ई ज्ञान कोश वेबसाइट है उस पर इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड कॉपी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बाई चांस अगर नहीं मिली है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर जाकर गूगल में अगर आप डालेंगे ई ज्ञान कोश और फिर कोर्स कोड आगे आप डाल देंगे तो उसका PDF का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करिए। और हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स की जो प्रोजेक्ट हैंडबुक है उसमें कंप्लीट गाइडलाइंस मैडम ने जो अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन करके समझाया है, वो सारी की सारी गाइडलाइंस रिटन फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसा मैडम ने भी आपको कहा, मैं भी सेम रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम में कर रहा हूं, एक बार आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्रोजेक्ट हैंडबुक को, गाइडलाइंस को बहुत आराम से, ध्यान से, गहराई से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप इन गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे तो आपको ना सिनॉप्सिस बनाने में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, ना आपका प्रोजेक्ट वर्क करने में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में कोई भी आपको इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मैम, विद ऑल दिस वर्ड्स, अगर आप कोई लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें तो उसके बाद फिर हम इस आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे मैम। हाँ बिल्कुल। एक तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और खाली इस प्रोग्राम के लिए नहीं, आपने और भी स्कूल के प्रोग्राम्स के लिए जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है उनके लिए आपने इनिशिएटिव लिया है। तो अब मुझे लगता है आगे भी ऐसा चलता रहेगा और इससे हमारे लर्नर्स को बहुत फायदा होगा, मुझे लगता है। और इसके साथ मैं लर्नर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करें, आप पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपना टाइमली लें। हमसे कोई एडवाइस चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, आप कोई आपको क्वेरी हो, आप हमेशा लिख सकते हैं schooloflaw@ignou.ac.in को, या फिर director@ignou.ac.in पे, या फिर मेरी आईडी भी है gurmeet.kaur@ignou.ac.in। बाकी रीजनल सेंटर्स की आईडीज आपके पास हैं ही, और आप कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज ओपन टू आवर लर्नर्स। सो मैं इसके साथ सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। यस, थैंक्स ए लॉट Thank मैडम, you. थैंक यू सो मच। और मैडम, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की डायरेक्शन में ये एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव था, और मुझे भी ये था कि हालांकि हम प्रिंटेड प्रोजेक्ट हैंडबुक उनको देते हैं जिसमें गाइडलाइंस प्रिंटेड होती हैं, बट फिर भी क्योंकि एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्कूल की तरफ से हमारी यूनिवर्सिटी की हमारे लर्नर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो आपकी गाइडेंस, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लर्नर्स को मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम आपकी हेल्प से आज ऑर्गेनाइज किया। और मैडम, इस प्रोग्राम को अब जैसे हमारे पास हमने ये गूगल मीटिंग में किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको अपने रीजनल सेंटर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, और उसका फिर लिंक नॉट ओनली विद द लर्नर्स बट बाकी जितने भी हमारे 56 दूसरे रीजनल सेंटर्स हैं उनके साथ भी हम इस लिंक को शेयर करेंगे, ताकि जो भी लर्नर्स हमारे CCP प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं वो इस प्रोग्राम को भी एज एडिशनल रिसोर्स यूज कर सकें, और प्रिंटेड गाइडलाइंस के साथ साथ इस वीडियो फॉर्म में जो आज आपने उनको गाइडलाइंस दी हैं वो भी उनको हासिल हो जाएं, तो उनको पूरी प्रोसेस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये मैडम, ये जो आज का प्रोग्राम है ये आपकी सपोर्ट से ही इतना सक्सेसफुली पूरा हो पाया है। तो आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू मैम। आपने
along with your other responsibilities, और आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं being director of a school, तो आपने अपना इतना कीमती टाइम मैडम हमारे लिए निकाला, हमारे विद्यार्थियों के लिए निकाला. आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू मैम. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. Thanks. Namaskar, madam.